Jai Shri Mahakal. The very name resonates with power, divinity, and the eternal cycle of creation and destruction. We stand at the threshold of understanding a profound mystery, a secret whispered through the ages. आज हम महादेव के एक ऐसे नाम के रहस्य को जानेंगे, a name that might challenge your very understanding of the Lord of Lords. We will delve into the ancient scriptures, explore the sacred texts, and decipher the hidden meanings behind the symbols and stories that surround Shiva. जिसे सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, prepare to be amazed, for the revelation that awaits is both unexpected and deeply significant. It's a name that connects Shiva to the very fabric of the universe. Shiv ka naam, Vishwakarma. Yes, you heard it right. Shiva, the destroyer, the ascetic, the ultimate yogi, is also known as Vishwakarma. Hum Shiv ko Bholenath, we know Shiva as Bholenath, the innocent one, easily pleased by devotion. Neelkant, the one who swallowed the poison to save the world, bearing the mark of Neelkanth forever. Mahakal कहते हैं, we call him Mahakal, the Lord of Time, the ultimate power that governs all existence. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें आदि विश्वकर्मा भी कहा गया है? But did you know that he is also referred to as Adi Vishwakarma, the first Vishwakarma? This title unveils a completely new dimension to his divine persona. Vishwakarma का अर्थ है Vishwakarma, a name laden with meaning and significance. संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता. It signifies the creator of the entire universe, the divine architect who fashioned the cosmos from the void. Shiv केवल विनाश के देवता नहीं, Shiva is not merely the god of destruction as he is often perceived. बल्कि सबसे बड़े निर्माता. He is, in fact, the greatest creator, the source of all that exists. He is the power behind every beginning, every innovation, every act of creation. Ingenieur, he is the divine engineer, the master craftsman who designed the intricate workings of the universe. और कलाकार भी हैं, and the ultimate artist, whose creations are manifested in the beauty and wonder that surrounds us. शास्त्रों में विश्वकर्मा एक उपाधि है. In the scriptures, Vishwakarma is a title, a designation of immense power and responsibility, जो उसे दी जाती है, जो शून्य से सृष्टि की रचना कर सके. It is bestowed upon the one who has the ability to create something from nothing, to manifest the universe from the void. आज हम जानेंगे कि शिव को विश्वकर्मा क्यों कहा गया. Today, we will unravel the mystery of why Shiva is called Vishwakarma. और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है. And what significance this revelation holds for our lives, for our understanding of the divine, and for our own creative potential. तो चलिए, इस दिव्य रहस्य की यात्रा शुरू करते हैं. So, let us embark on this journey into the divine mystery, with open hearts and curious minds. और शिव के व्यापक स्वरूप को समझते हैं. And let us strive to understand the vast and multifaceted nature of Shiva, the Adi Vishwakarma, the creator of all. विश्वकर्मा, यह शब्द अपने आप में एक गहरा अर्थ समेटे हुए है. यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक अवधारणा है, एक दर्शन है. विश्व यानी ब्रह्मांड, यह विशाल और अनंत अंतरिक्ष, जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं समाहित हैं. यह वह सब कुछ है जो हम देख सकते हैं, और वह भी जो हमारी समझ से परे है. और कर्मा यानी रचयिता, सृजनकर्ता, वह शक्ति जो इस ब्रह्मांड को आकार देती है, जो हर चीज को अस्तित्व में लाती है. यह वह क्रिया है जो विचार को वास्तविकता में बदलती है. इसका अर्थ है, ब्रह्मांड का निर्माता, वह शक्ति जिसने इस पूरे संसार की रचना की, जिसने इसे आकार दिया और इसे जीवन दिया. यह एक ऐसा विचार है जो हमें विस्मय और श्रद्धा से भर देता है. यह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है, एक पदवी है जो उस सर्वोच्च शक्ति को दी जाती है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, बल्कि एक महान जिम्मेदारी और शक्ति का प्रतीक है. यह उस भार को दर्शाता है जो सृजनकर्ता अपने कंधों पर लेता है, और उस असीम क्षमता को भी जो उसके भीतर निहित है. शास्त्रों में यह शब्द निर्माण की दिव्यता को दर्शाता है, उस पवित्र प्रक्रिया को जो हर चीज को अस्तित्व में लाती है, उस रहस्यमय शक्ति को जो जीवन को जन्म देती है. हर रचनाकार, चाहे कुम्हार हो जो मिट्टी को आकार देकर सुंदर बर्तन बनाता है, या वैज्ञानिक जो नए आविष्कारों से दुनिया को बदलता है, अपने स्तर पर विश्वकर्मा है, क्योंकि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ नया बनाता है, कुछ न कुछ योगदान देता है. लेकिन जब हम इसे शिव से जोड़ते हैं तो यह एक विशेष संदर्भ प्राप्त करता है, एक गहरा अर्थ प्राप्त करता है. तो इसका अर्थ अनंत हो जाता है. यह उस असीम शक्ति का प्रतीक बन जाता है जो ब्रह्मांड को चलाती है. संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाली चेतना, वह शक्ति जो हर चीज को जोड़ती है, जो हर चीज में व्याप्त है. शिव का तांडव केवल विनाश नहीं बल्कि एक आवश्यक प्रक्रिया है, बल्कि नए सृजन के लिए जगह बनाना है, पुराने को हटाकर नए को जन्म देना है.
शिव का विश्वकर्मा स्वरूप हमें प्रेरित करता है कि हम भी सृजन की शक्ति को पहचानें, कि हम भी अपने जीवन में रचनात्मकता और सृजन का सम्मान करें और इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। शिव को अक्सर संहारक के रूप में देखा जाता है, लेकिन वे सृजनकर्ता भी हैं। उनका अर्धनारीश्वर रूप दिखाता है कि सृजन के लिए दोनों ऊर्जाओं का मिलन जरूरी है। शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, सृजन और संहार दोनों का। शिव के तीनों रूप सृजन, पालन, संहार एक ही चक्र के हिस्से हैं। उनका संहार नकारात्मक नहीं बल्कि नए जीवन के लिए आवश्यक है। शिव का विश्वकर्मा स्वरूप हमें सिखाता है कि वे ही शुरुआत हैं और वे ही अंत हैं। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को अनेक रूपों में दर्शाया गया है। उनका हर रूप एक विशेष गुण और शक्ति का प्रतीक है। शिव के विश्वकर्मा स्वरूप के कई उदाहरण मिलते हैं। यह स्वरूप उनकी रचनात्मकता और शिल्पकला कौशल को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि शिव केवल विनाशक ही नहीं बल्कि एक महान निर्माता भी है। उनकी यह क्षमता ब्रह्मांड के निर्माण और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण के लिए एक ऐसे दिव्य वास्तुकार की आवश्यकता हुई जो ब्रह्मांडीय योजनाओं को साकार कर सके, तब शिव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। दिव्य वास्तुकार चाहिए था जो न केवल संरचनाओं का निर्माण कर सके बल्कि उनमें जीवन और ऊर्जा का संचार भी कर सके। तब शिव ने अपनी शक्ति से अपनी आंतरिक ऊर्जा और रचनात्मक क्षमता का उपयोग करके एक अद्भुत रचना की। भगवान विश्वकर्मा को उत्पन्न किया। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी शिव की रचनात्मक शक्ति का ही प्रकटीकरण है। वे ब्रह्मांड के सभी निर्माणों के पीछे की रचनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिपुरासुर की कथा में जब 3 शक्तिशाली असुरों ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था, तब शिव ने एक विशेष भूमिका निभाई। शिव ने स्वयं दिव्य रथ और अस्त्रों का निर्माण किया जो न केवल शक्तिशाली थे बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भी संचालित थे, और 3 नगरों का नाश किया। ये विनाश बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक था और शिव की रचनात्मक और विनाशकारी दोनों शक्तियों का प्रदर्शन था। लंका नगरी की रचना भी एक अद्भुत कहानी है जो शिव के आशीर्वाद और रचनात्मक हस्तक्षेप को दर्शाती है। शिव की प्रेरणा से हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी नगरी का निर्माण हुआ जो अपनी सुंदरता और वैभव के लिए जानी जाती थी, जिसे बाद में उन्होंने दान कर दिया। ये दान शिव की उदारता और त्याग की भावना को दर्शाता है। शिव ने देवताओं को समय समय पर उनकी रक्षा और सहायता के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। पाशुपतास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र दिए। यह अस्त्र उनकी शक्ति और करुणा का प्रतीक है जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। उनका डमरू सृष्टि के नाद का प्रतीक है जो ब्रह्मांड की लय और कंपन को दर्शाता है, जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। यह नाद न केवल ध्वनि है बल्कि ऊर्जा और जीवन का स्रोत भी है। ये कथाएं बताती हैं कि शिव का स्वरूप कितना व्यापक और बहुआयामी है। शिव केवल योगी नहीं जो ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से सृष्टि के निर्माण और संचालन में भी भाग लेते हैं, बल्कि परम शिल्पी और निर्माता भी हैं। उनका यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि रचनात्मकता और विनाश दोनों ही ब्रह्मांड का अभिन्न अंग हैं और दोनों का अपना महत्व है। शिव को आदि शिल्पी कहना मतलब उन्होंने ब्रह्मांड के मूल तत्वों और नियमों की रचना की। पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश शिव की रचना है। मानव शरीर, योग और ध्यान की विधियां सब शिव की अद्भुत शिल्पकला के उदाहरण हैं। उनका तांडव नृत्य सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है। डमरू से संगीत और व्याकरण की उत्पत्ति हुई। शिव का विश्वकर्मा स्वरूप हमें प्रकृति और जीवन की सुंदरता का सम्मान करना सिखाता है। शिव के विश्वकर्मा स्वरूप का प्रमाण उनके बनाए दिव्य अस्त्र शस्त्रों और नगरों में मिलता है। उनका त्रिशूल 3 गुणों का प्रतीक है, सत्व, रजस, तमस। पाशुपतास्त्र जो उन्होंने अर्जुन को दिया ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति रखता है। लंका, अमरावती जैसे दिव्य नगर शिव की प्रेरणा से बने। शिव की रचनाएं केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का भी केंद्र हैं। वे सिखाते हैं कि निर्माण की शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। रचनाएं मानवता के लिए हों। आज के युग में विश्वकर्मा नाम हमें हर रचनात्मक कार्य का सम्मान करना सिखाता है। इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार सभी शिव की रचनात्मक चेतना के अंश हैं। शिव का स्वरूप युवाओं को प्रेरित करता है, नवाचार करें, समस्याओं का समाधान खोजें। यह नाम हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी सिखाता है। प्रकृति की रक्षा करें। हमें निर्माता बनना है, विनाशक नहीं। सबसे बड़ी रचना है स्वयं का निर्माण। योग, ध्यान और अच्छे कर्मों से खुद को तराशें। शिव को एक रूप में बांधना संभव नहीं, वे संहारक भी हैं, सृजनकर्ता भी। वे ही आदि हैं,
जिनसे सृष्टि की शुरुआत हुई और वे ही अंत हैं जिनमें सब विलीन होता है। उनका तांडव महाप्रलय का प्रतीक है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत है। शिव का विश्वकर्मा स्वरूप बताता है, विनाश और निर्माण एक ही चक्र के दो पहलू हैं। जीवन में जब कुछ खत्म हो तो समझें, नई शुरुआत के लिए जगह बन रही है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय याद रखें, हम उस परम शिल्पी को नमन कर रहे हैं जिसकी सबसे सुंदर रचना हम स्वयं हैं। मित्रों, यह था महादेव के विश्वकर्मा स्वरूप का संक्षिप्त परिचय। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट में जरूर बताएं, आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञान और भक्ति के इस प्रवाह को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। जुड़े रहें, भक्ति में डूबे रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जय श्री महाकाल।